Hi everyone, this is Sona Sharma, your reasoning mentor. Today we will do puzzle based on boxes. This session is going to be very important for your upcoming mains exam, especially for SBI Clerk mains and IBPS RRB PO mains. But before doing this, you must know some facts about box based puzzle. So students, if they have given you the definite position of any box or the position of any box from the bottommost or topmost position, then without wasting your time, write the numbers accordingly from bottom to top or make table or sequence, okay? But if you do not get the definite position of any box, then please don't make a table or sequence first. In these cases, we have to continue our solution according to the given information and by taking all possibilities. We are doing this for minimum number of possibilities, okay? So let us start. Eight boxes P, Q, R, S, T, U, V and W are placed one above the other, but not necessarily in the same order. Okay, so 8 boxes are arranged vertically. The lowermost box is numbered as 1 and above it box is numbered as 2 and so on till the topmost box is numbered as 8. Okay, so the bottommost box is numbered as 1 and the topmost box is numbered as 8. Each of boxes contains different fruits: apple, banana, cherry, date, grapes, mango, orange, papaya, and each of boxes is of different weights: 20, 22, 24, 26, 30, 34, 37 and 40, but not necessarily in the same order. So we have two variables in this puzzle. Box P is placed at the odd numbered position below 5th position. Okay, it means either it is at first position or third position, because they have said that box P 5th position के below है. तो 5th position के below we have only two odd numbers, 1 and 3. So सबसे पहले we will write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. One column will be for boxes and two variables are there. So their respective weights and fruits in them. Okay. So we will name it as case 1 and this as case 2. Okay. First case में we will take P at third position and in second case we will take P at first position. Okay. So P is either at first or third. Now, and it is placed adjacent to box which weight is 34 kg. Adjacent means immediate above or immediate below. It means 34 kg वाला box या तो P के immediate above होगा या फिर immediate below. So if I see in case second, तो P के adjacent बस एक ही position है, that is second position. It means 34 kg वाला box P के just ऊपर आ जाएगा. But in case 1, P के adjacent, there are two positions adjacent to P, okay, second and fourth. So, हो सकता है that 34 is at fourth position और ये भी हो सकता है कि 34 होगा second position पे. मैंने slash बना दिया है, इसका मतलब है ये possibility है, इन दोनों में से किसी एक position पे जरूर होगा. There are 3 boxes are placed between the box which weight is 30 kg and the box which contains orange. Now, दोनों ही cases में हमें ना ही 30 kg दिख रहा है और ना ही orange. तो एक काम करते हैं, इस information को हम note कर लेते हैं side में. So, 30 kg वाले box 1, 2, 3 और जिस box में orange है उनके बीच में 3 boxes हैं.
बॉक्स आर इज प्लेस्ड एट द सेकेंड पोजीशन, डेफिनाइट इंफॉर्मेशन है दैट सेकेंड पोजीशन पे आर है, दोनों ही केसेस में रख दीजिए, आर इज एट सेकेंड पोजीशन. ओके, बॉक्स V's weight is 24 kg and is placed at the top. Again, definite information. They are saying V is at top and its weight is 24 kg. Simultaneously दोनों ही केसेस में हम रखते जाएंगे. Box R's weight is not 30 kg. So R is at second position. It means second position पे 30 kg का बॉक्स नहीं आएगा दोनों ही केसेस में. The box which contains orange is placed adjacent to the box which contains apple. Okay, one more information about orange, that orange वाला जो box है that is adjacent to box that contains apple. नोट कर लेते हैं साइड में, बिकॉज हमें अभी दोनों ही केसेस में ऑरेंज की पोजीशन नहीं पता है, तो अभी इस इंफॉर्मेशन को हम डायरेक्ट लिंक नहीं करा सकते. Two boxes are placed between the boxes which weights are 24 and 37. Now we have 24 in both the cases. यहाँ पे भी 24 की पोजीशन पता है और यहाँ पे भी. They are saying कि 24 kg वाले बॉक्स और 37 kg वाले बॉक्स के बीच में 2 बॉक्सेस हैं. So 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 37, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 37. ओके, The box which contains apple is not of 34 kg. Okay, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ये जो एप्पल वाला बॉक्स है इसका वेट 34 नहीं होगा. बॉक्स R contains grapes, so R is at second position. तो इसके अंदर क्या है, ग्रेप्स है. डेफिनाइट इंफॉर्मेशन है, पुट इट एज इट. बॉक्स U contains cherry and placed adjacent to the box which contains date. So इसे भी हम नोट कर लेते हैं बिकॉज अभी हम इसे लिंक नहीं करा पा रहे हैं दोनों ही केसेस में. सो बॉक्स U में है चेरी and it is adjacent to box that contains date. मीन्स ये एक दूसरे के इमीडिएट अबव या बिलो होंगे. Maximum number of boxes are placed between the boxes which contain mango and papaya. Very important point. They are saying there are maximum number of boxes between the boxes that have mango and papaya. It means वो extreme ends पे होंगे. It means इनमें से एक टॉप मोस्ट पे होगा और सेकेंड वाला बॉटम मोस्ट पोजीशन पे होगा. Only then there will be maximum number of boxes between them. Okay. So it means मैंगो और पपाया या तो 8th पोजीशन पे होंगे या फिर फर्स्ट पोजीशन पे. तो हम डायरेक्ट मैंगो एंड पपाया, मैंगो एंड पपाया. सेकेंड केस में भी मैंगो एंड पपाया, मैंगो एंड पपाया. बॉक्स P does not contain papaya. Now अगर फर्स्ट केस में देखें तो P इज एट थर्ड पोजीशन, इसके आगे पपाया नहीं है. ओके, इन्होंने कहा है दैट P डज नॉट कंटेन पपाया. ओके, सेकंड केस में आते हैं. यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे P है और यहाँ पे मैंगो और पपाया में से कोई एक फ्रूट होगा. अभी अभी हमने देखा है दैट पपाया P बॉक्स में नहीं होगा, तो इसे कट कर दीजिए. इट मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे P बॉक्स होगा और उसमें क्या होगा, मैंगो. जब मैंगो फर्स्ट पोजीशन पे है तो 8th पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, पपाया होगा. दोनों की पोजीशन हो गई कंफर्म. ठीक है. बॉक्स T कंटेन्स बनाना एंड इज प्लेस्ड adjacent to the box which contains mango. Now they are saying T contains banana and it is adjacent to the box that has mango. If I see in case second, तो हमें पता है मैंगो की एग्जैक्ट पोजीशन है फर्स्ट. ये कह रहे हैं ये जो मैंगो जिस बॉक्स में है वो एडजेसेंट होगा बॉक्स T के, मतलब कि इसके जस्ट ऊपर T आना चाहिए. बट यहाँ पे तो ऑलरेडी R बैठा है. इट मीन्स ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा इस इंफॉर्मेशन को. इट मीन्स हम इस वाले केस से कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अपनी पजल. ठीक है, बिकॉज ये T वाला इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है इसमें. ठीक है, तो इसे हम कर देंगे कैंसिल.
नाउ केस 1 में रखते हैं। स्टूडेंट्स, इफ आई से दैट मैंगो इज एट फर्स्ट पोजीशन, ओके, अगर मैंगो यहाँ आता है तो सेकेंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए? टी आना चाहिए, बिकॉज टी इज एडजेसेंट टू दैट बॉक्स दैट कंटेन्स मैंगो। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी आर है, इट मीन्स मैंगो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे किसकी पोजीशन हो गई? कंफर्म, पपाया की। अब 8th पोजीशन पे आइए, जब फर्स्ट पे पपाया है तो 8th पे क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस कि मैंगो होगा, यहाँ पे पपाया नहीं होगा। अब इस वी बॉक्स में मैंगो है और इसके एडजेसेंट कौन सा बॉक्स है? टी, जिसमें क्या है? बनाना। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 3 बॉक्सेस placed between the box which weight is 26 and the box which contains cherry. Okay, so 26 जिस बॉक्स का वेट है और 1 2 3 जिस बॉक्स में चेरी है, उनके बीच में 3 बॉक्सेस होंगे एंड उन्होंने फिर कहा है दैट placed above the box which weight is 26 kg, मतलब कि ये चेरी वाला बॉक्स 26 kg के above होगा। ओके, ठीक है, इसे हमने साइड में लिख लिया बिकॉज अभी हम इसे डायरेक्टली लिंक नहीं करा पा रहे हैं केस 1 में। बॉक्स W's weight is not 20 kg, note it, W का वेट, बॉक्स W का वेट 20 kg नहीं है। More than 2 boxes are placed between box S and Q, okay? S और Q के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स हैं which weight is 40 kg and Q का वेट है 40 kg, okay? So अब ये पजल हो गया है। अब हम जो भी हमने इंफॉर्मेशन लिखा है साइड में उसे लिंक कराएंगे हमारे केस में, ओके? So इसमें से हम कौन सा इंफॉर्मेशन रख सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है 34 की। 34 या तो 4th पोजीशन पे होगा या फिर 2nd पोजीशन पे। तो मान लेते हैं दैट दिस इज 1A, मान लेते हैं इसे फर्स्ट है। इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं दैट 34 इज एट 4th पोजीशन, इसकी पोजीशन कर देते हैं कंफर्म और इसका एक कॉपी बना लेते हैं केस 1 का और उसे नेम कर देते हैं 1A, ओके? और उसमें हम 34 की पोजीशन ले लेते हैं 2। यहां से हटा रही हूं, यहाँ पे एक बार 34 को हम 2nd पोजीशन पे पुट कर लेंगे और एक बार 4th पोजीशन पे, ओके? कॉपी कर लेते हैं इसे। ओके, नाउ अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो हमें इस यू चेरी, जिसमें चेरी है, उसके बारे में हमें 2 इंफॉर्मेशन पता है। कौन सी? दैट एक तो ये जो चेरी है ये एडजेसेंट है डेट के और ये चेरी 26 वाले बॉक्स के अबव है। चेरी ये भी यू ही है, ओके? सो अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं, if I put 26 here at first position, let 26 is here, एक possibility ये है, then 1 2 3 you will be here only, okay? That will contain cherry, okay? If I put 26 at 2nd position, then 1 2 3 you will be here only at 6th position and contains cherry in it, okay? Now if I put 26 here at 3rd position, then 1 2 3 U 7th position पर होना चाहिए, but यहाँ पे already T is there. It means 26 यहाँ पे नहीं होगा. It means और कोई possibility 26 की अब नहीं है because U नहीं बैठ पाएगा. So we have 2 possibilities here. अब आ जाइए first A case में. If I put 26 here at first position, then 1 2 3 you will be here only, okay? और देखते हैं कोई और possibility है क्या? If I put 26 here, then 1 2 3 you should be here, but यहाँ पे तो already T बैठा है, it means 26 यहाँ पे नहीं होगा और कोई भी position 26 की नहीं हो सकती.
तो यहाँ पे वी हैव ओनली वन पोजीशन फॉर 26, दिस वन 1 2 3, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी यू की पोजीशन जिसके अंदर है चेरी। ओके, नाउ अब हमें एक और लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा है दैट 30, जिसका वेट 30 है और जो ऑरेंज है उनके बीच में 3 बॉक्सेस हैं एंड ऑरेंज वाला बॉक्स इज एडजेसेंट टू द बॉक्स दैट कंटेन्स एप्पल। ओके, सो लेट अस टेक if we take orange here at 6th position, okay, if orange is here केस 1 में, सो 1 2 3 यहाँ पे क्या होना चाहिए 30 होना चाहिए, यही दे रखा है, बट हमें ये पता है दैट R वाला बॉक्स 30 kg का नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पे 30 नहीं आ सकता कभी भी, इट मीन्स यहाँ पे 30 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑरेंज यहाँ पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, इफ आई पुट ऑरेंज हियर, यहाँ पे रख दूं तो 1 2 3 30 कहाँ आएगा, बिल्कुल लास्ट वाले पे, बॉटम पे, ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसे भी बना लेते हैं। इफ ऑरेंज इज हियर, ओके, अगर मैं ऑरेंज यहां रखती हूं इस पोजीशन पे, देन 1 2 3, नीचे तो स्पेस ही नहीं है 30 के लिए। अबव देखते हैं 1 2 3, यहाँ पे 30 नहीं आ सकता बिकॉज 24 है ऑलरेडी, इट मीन्स ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं आएगा। इफ आई पुट ऑरेंज हियर थर्ड पोजीशन पे, देन 1 2 3, 30 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, सो एक तो ऑरेंज का ये हो जाएगा, ये वाला, और एक ये वाला। अब हमें स्टूडेंट्स ये पता था, इफ आई पुट ऑरेंज हियर देन 1 2 3 30 विल बी हियर। ओके, और ऑरेंज के बारे में हमें एक और पॉइंट पता है दैट ऑरेंज इज एडजेसेंट टू एप्पल। इफ आई पुट ऑरेंज हियर देन एप्पल इसके इमीडिएट बिलो तो आ नहीं सकता, तो एडजेसेंट दूसरा क्या हुआ, इमीडिएट अबव, तो एप्पल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, बट एप्पल के बारे में हमें पता है दैट जिस बॉक्स में एप्पल है वो 34 kg का नहीं होगा, और यहाँ पे जैसे ही एप्पल आएगा वो 34 kg का हो जाएगा। इट मीन्स ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं आ सकता। सो बस एक ही जगह आएगा ऑरेंज, दैट इज एट 5th पोजीशन। ओके, सो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 30 कंफर्म। इट मीन्स यहाँ पे 26 नहीं आएगा, तो 26 कहाँ आएगा, सेकेंड पोजीशन पे, तो ये पोजीशन हो जाएंगी कंफर्म। अब सेकेंड पे आइए, फर्स्ट ए केस में, इफ आई पुट ऑरेंज हियर देन 1 2 3, 30 नहीं आ पाएगा बिकॉज 34 इज ऑलरेडी हियर, इट मीन्स ऑरेंज यहाँ नहीं आ सकता। अबव तो हमारे पास स्पेस ही नहीं है। इफ आई पुट ऑरेंज हियर देन अगर मैं बिलो देखूं 1 2 3, तो 30 के लिए है नहीं कोई भी बॉक्स। इफ आई सी अबव 1 2 3, 30 नहीं आ सकता बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 24 है, इट मीन्स ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो कौन सा पोजीशन बचा, बस एक, सो यहाँ पे हम रख देंगे ऑरेंज को। ठीक है, नाउ 1 2 3, तो 30 की हो जाएगी पोजीशन कंफर्म यहाँ पे। ओके, अब ऑरेंज एडजेसेंट है एप्पल के, ठीक है, और एप्पल का वेट 34 नहीं है, तो केस फर्स्ट में ऑरेंज एडजेसेंट है एप्पल के। अगर मैं इमीडिएट बिलो देखूं, यहाँ पे एप्पल रखूंगी तो ये 34 kg हो जाएगा, बट दे हैव सेड 34 kg का नहीं है एप्पल, तो हम क्या करेंगे, इसके इमीडिएट अबव रख देंगे एप्पल को। एप्पल की भी पोजीशन हो गई कंफर्म। फर्स्ट ए केस में आइए, ऑरेंज यहाँ पे है, इमीडिएट बिलो ऑलरेडी एक इस बॉक्स में ऑलरेडी ग्रेप्स हैं, तो इमीडिएट अबव ही एडजेसेंट बचा हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्पल। ओके, नाउ वी हैव यूज दीज टू इंफॉर्मेशन। अब हमने ये वाला इंफॉर्मेशन भी यूज कर लिया है, यू और चेरी वाला, है ना। फर्स्ट वाले में जैसे ही 26 की कंफर्म हुई स्टूडेंट्स पोजीशन, वैसे ही 1 2 3 यू की भी कंफर्म हो जानी चाहिए। तो यू यहाँ पे आएगा, इसके अबव 1 2 3 यू यहाँ पे आएगा, और इसके अंदर क्या होगा, चेरी, बट यहाँ पे तो एप्पल है ना, इट मीन्स ये वाला केस हो गया हमारा रॉन्ग, तो इसे हम यहाँ पे कर देंगे कैंसल, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हमारी इस वाली इंफॉर्मेशन को दैट यू कंटेन्स चेरी।
यहाँ पे ये दे रहा है कि U के अंदर एप्पल आ रहा है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे 1A और यही हमें सॉल्यूशन देगा हमारा, ठीक है। अब U चेरी वाला बॉक्स इज एडजेसेंट टू डेट, सो चेरी इज हियर, सो इसके एडजेसेंट डेट कहाँ आएगा, ऊपर इसके डेट विल बी हियर, ओके। ये वाला इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर लिया, वी हैव यूज दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो। बचा कौन सा, एक ये वाला एंड दिस वन, ओके। अब S और Q के बीच में देयर आर मोर देन 2 बॉक्सेस। इफ आई पुट S और Q here at 4th position, if I put S here, then Q या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, बट दोनों ही केसेस में एक बार आएगा नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 और एक बार आएंगे नंबर ऑफ बॉक्स 1, है ना, जबकि हमारे जो नंबर ऑफ बॉक्सेस होने चाहिए वो होने चाहिए 2 से ज्यादा। इट मीन्स S और Q में से कोई भी इस पोजीशन पे तो नहीं आएगा, ठीक है। सो S Q के लिए 2 ही पोजीशंस बची है, या तो वो होंगे 6th पोजीशन पे और एट 1st पोजीशन, ओके। नाउ Q का वेट 40 kg है, बट ये जो 1st पोजीशन पे बॉक्स रखा है उसका वेट तो 26 है, हमें पता है। इट मीन्स Q यहाँ पे नहीं होगा, तो Q कहाँ होगा, इस वाले पोजीशन पे 6th पोजीशन पे, और S होगा 1st पोजीशन पे। इनकी पोजीशंस हो गई कंफर्म। अब हमारे पास एक वैकेंट प्लेस बचा है, ओके, और एक एलिमेंट भी बचा है W, सो W आ जाएगा एट 4th पोजीशन, ओके, एंड W 20 नहीं होगा, ओके, यहाँ पे 20 नहीं आएगा। Q का वेट हमें पता है 40 लिख देंगे। अब W 20 नहीं होगा तो जो रिमेनिंग बॉक्स है वो ही 20 kg का होगा। अब एक और वेट बचा है वो W का हो जाएगा, दैट इज 22, सो 22 रख देंगे हम यहां, ओके। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। व्हाट इज द वेट ऑफ बॉक्स S? सो बॉक्स S का वेट है 26, so option 5th will be correct. What is the position of box Q? बॉक्स Q की पोजीशन, अब इन्होंने हमें ये नहीं दिया दैट फ्रॉम द बॉटम और फ्रॉम द टॉप, ओके। पोजीशन ऑफ Q, if I see from the top then 1 2 3 third from the top, if I see from the bottom then 1 2 3 4 5 6 6th from the bottom। देखते हैं आंसर में, they have given us 6th and 3rd both, it means none of these will be our answer। अगर यहाँ पे 6th/3rd दिया होता तो हम उसे टिक कर देते, ओके। नेक्स्ट, which of the following boxes weight is 37 kg? so 37 kg U बॉक्स का वेट है, so our answer will be option 4th। Which of the following fruit box W contains? so W में कौन सा फ्रूट है, W contains apples in it, so option 3। How many boxes are placed between box T and W? काउंट करते हैं, this is our W and this is our T, T and W में there are 2 boxes, so 2 will be our answer, option 5th will be correct, okay। So I am winding up this session now, hope you like it, thank you।